I extend a very hearty welcome to every one of you for last day session. It is not last day. In this, first 4 days, this is the last session. And I'm sure we are going to continue. And I mean, in consultation with our faculty, Mrs. Shamla Shukla ji and Nisha Gupta ji. So before we start, let us do 3 minutes of meditation. Friends, I request you to kindly sit straight. Sit straight. Let your legs be crossed. You can keep your hands in chin mudra or fold it so your aura doesn't go away from you. And then close your eyes. You have to watch your thought. Simply witness the thought. As you witness your flow of thought, thought drops. In other words, slowly, you will gain a grip over your mind instead of mind having a grip over you. You will slowly understand you means the witness consciousness in you. Who is witnessing the thought? Mind is seen. Who is the seer? That is your true self. That is called prajna. Sthita prajna means, yet sthita means stay there. Stay there so that you will slowly understand that you are the prajna, you are the consciousness. Though you are inside your body, the consciousness has got no birth or death. That feeling will become stronger and stronger if you practice this meditation every day. Mind becomes very, very, very meditative, cool and calm. As I told you yesterday, automatically our parasympathetic nervous system will be activated. Our health will improve. Digestion, sleep pattern, everything improves. More than that, our perception level, intellectual level will improve. You become the master of your body and the mind. So now you can rub your hand, palms, gently make a cup out of it, close it on your eyes, and slowly open your eyes. So on behalf of every one of you, I once again extend a hearty welcome to our beloved faculty for today's session. And I hand over the session to Shamla ji and Nisha ji. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much for your warm welcome. Thank you. Before we start the session, let us invoke the energy of Creator of all that is and take the blessings of our Guru Khemka sir, JP Agarwal sir, Ravindran sir, and our parents. So friends, we all know that we are on a journey of plotting the 60 command points on the body and on the beyond. So we have already completed 9 meridians. Today is our last day of the 60 command point session. If God will, maybe we may do certain more sessions. So today we will be covering stomach, gallbladder, and urinary bladder. So to start the session, I will invite Nisha ji. So Nisha ji, over to you. Thank you, Rindra sir. Thank you so much. प्रभु परमेश्वर की, पिता परमेश्वर की आशीर्वाद लेते हुए, माता प्रसाद जी खेमका जी का आशीर्वाद लेते हुए, जेपी अग्रवाल सर का ब्लेसिंग्स के साथ माता पिता जी का और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि आज हमारा लास्ट डे है, बट नॉट लीस्ट, नॉट
कोशिश करेंगे कि आपके साथ फैमिली बनी रहे, चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ ही आज हम थोड़ा सा सेशन रिपीट करेंगे, पिछले वाला भी, कहीं ये ना हो जाए कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं और बैक साइड का हम भूलते जाएं। तो आप सभी को पता है कि दोनों फिंगर्स को हम लेते हैं, ये हमारा फेस लेग हैंड्स हैं, ये हमारे लेग्स हैं। जो भी मेरिडियन हमारी आती हैं, ब्योल पे आती हैं, तो वो यहाँ पे हैंड्स वाली अपर बॉडी की आती हैं और लोअर बॉडी की यहाँ पे आती हैं। इनकी लोकेशन एंड इनको पोजीशन बहुत अच्छे से, हमेशा जब भी आपने इनका ट्रीटमेंट करना है तो इस तरह से आपकी पोजीशन हो, आपको पता हो कि अपर फ्लो, डाउनवर्ड फ्लोर, अपर फ्लो का मीनिंग है कैसे, क्या है। दूसरी चीज, यहाँ पे सभी को पता है कि लंग्स की मेरिडियन हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, पेरिकार्डियम की हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, ट्रिपल वार्मर की यहाँ से स्टार्ट होती है, SI की यहाँ से, LI की यहाँ से। तो इस तरह से 6 मेरिडियंस को जब हम ऐसे HIH की हार्ट की यहाँ से, ये सब कुछ सारे बार बार देखो आप रिकॉर्डिंग, ताकि आपको अच्छे से लोकेशन का बॉडी पे भी पता चल सके और ब्योर पे भी पता चल सके। बाकी 6 मेरिडियंस हमारी लेग में लेग की साइड है, क्योंकि वो अर्दली हैं, जिन ऑर्गन की हैं, अर्दली एनर्जी हमें वहां से मिलती है। तो वो आपको पता है, लीवर है, स्प्लीन है, कल आपको दिखाया था लीवर, स्प्लीन एंड किडनी। और आज की मेरिडियन जो है स्टमक, GV एंड UV। हम इन 6 मेरिडियन को इस तरह से स्टार्ट करते हैं। पिछली अगर रिवीजन में कोई कमी हो या और ज्यादा चाहते हो तो मुझे आप पिन कर यहाँ बता देना, मैसेज लिख देना, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको कोशिश करती हूँ पैर का बताने की। हमारी जो स्टमक है, स्टमक मेरिडियन है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, बिग टो के साथ वाले सेकंड रोज, स्टमक 45। ये देखिए, मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? Yes, yes, it's clear. स्टमक 45 यहाँ से जाते हुए इसी लाइन पे ही स्टमक 44, ये बीच में ही आता है क्योंकि बोन्स इकट्ठी ही आती है। जब आप इसको इस तरह से फील करते हुए आगे बढ़ेंगे, दोनों बोन्स को यहाँ पे एंड आता है। और एक आपको एक और तरीका मैंने बताया था कि इस तरह से ये फिफ्थ जॉइंट तक ऐसे रखोगे तो भी आप अपने उसी पॉइंट पर ही पहुंच जाएंगे। ये वाला पॉइंट हमेशा ही पेनफुल होता है, ये तो बहुत ही पेनफुल होता है पॉइंट, क्योंकि ये नीज का खास पॉइंट है। इसको आप दबाते हुए पटेला की लोकेशन भी ठीक कर सकते हो। वहां पे लिगामेंट में अगर टेंडरनेस में अगर कहीं प्रॉब्लम आई हुई है, जॉइंट में वात की प्रॉब्लम है, कट कट की आवाज आ रही है, तो इसको आप इस तरह से प्रेस करेंगे और नी के ऐसे देखिए, नी के ऐसे प्रेस करते हुए नी के पटेला को ऐसे पकड़ के घुमाओगे तो ये घूम जाती है कटोरी हमारी नी की। ये 45 इतना वैल्यूएबल पॉइंट है, पेट को भी ठीक करता है। और 44, ये तो सबको पता है कि पेट की गर्मी बढ़ी हुई हो तो 44 को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हमारा ऐसे चलते हुए, जैसे ये मैंने बताया 43 पॉइंट तक बहुत इजी है लोकेशन। उसके बाद देखिए, इसी को इस तरह से लेके आए। यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, इस बोन के इस बॉर्डर के इस साइड है हमारा लीवर, इस साइड है हमारा स्प्लीन। तो उसके बाद लीवर के बिल्कुल साथ ही ना, यहाँ पे आप हाथ लगा के अपने अपने पैरों पे देखें, एक बोन आ रही है, लीवर वाले जॉइंट है ये देखिए, ये लीवर वाला जॉइंट है, स्प्लीन इस साइड का। लीवर के इस ये लीवर वाले के साथ यहाँ पे एक बोन है, उसके साथ ही एक डिप्रेशन है। अगर आप फील करेंगे ना तो आपको बहुत ये देखिए, मैं पैर जैसे घुमा रही हूँ, तो ये वाली कहीं लीवर 5 पे आप मत लगा बैठना। लीवर 5 ये मैं ये है लीवर 5, ये है SP। ये देखिए जरा जरा सा फर्क है, ये एंकल पे आते हैं। और इस वाली बोन के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे है हमारा 41। 41 के साथ ही स्टमक की मेरिडियन जब चली आ रही है, इसी के साथ साथ ही हमने आना है ये वाली जो
टिबिया बोन है, टिबिया बोन के साथ ही रहना है हमने। टिबिया बोन की इस एरिया को आप, जो नी का ये वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे पटेला खत्म हो जाती है और बिल्कुल यहाँ स्टार्ट होता है नी की आंख कहते हैं जिसको, वो थोड़ी सी ऊपर रह जाएगी और ये पॉइंट एरिया है, इससे आपने 4 फिंगर ऐसे रखी तो ये वाला जो हैंड ऐसे जाएगा टिबिया के एक थंब नीचे ऐसे, ये है हमारा 36। बहुत ज्यादा धोखा होता है लोगों को 36 और जीबी 34 में। अभी आपको जीबी 34 की जब लोकेशन बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि वो हमारी फिब्युला बोन पे है, ये हमारी टिबिया पे है। बस इतना से ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए ये वाली बोन जा रही है, अपनी बोन को सारे चेक करो तो यहाँ पे आपको वो बोन मिलेगी स्टमक टिबिया, उसके यहाँ से 4 फिंगर रखते ही यहाँ पे आपका टिबिया के साथ ही ये है हमारा स्टमक 36। एक बार फिर से देख लें, 45, 45, 44, 43, 41, ठीक है, और 36। अब अगला पॉइंट आता है जीबी का साथ, पहले यही बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। जीबी 44, ये भी घुटने में अगर किसी के विंड का प्रकोप हो चुका है तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी प्रेस करने से ही काफी फर्क पड़ता है। जीबी 44, जीबी 43, ये भी इसी के बीच में आता है यहाँ। जीबी 41 को जब आप लोकेट करोगे ना तो 2 तरीके हैं, एक तो इस वाली बोन को पकड़ लें आप, स्मॉल फिंगर की बोन, देखिए ऐसे करके देखोगे तो ये देखिए आपको बोन क्लियर दिख रही है आपकी, ऐसे इकट्ठे करवा लो पेशेंट के पैर, इस पे ऐसे चलते जाओगे तो ये है हमारा 41। उसको भी आप ऐसे, दूसरा तरीका है इस तरह से यहाँ तक, यहाँ रखें और ये वाला पॉइंट, इसके एक नस जाती है यहाँ पे पतली सी, उसके ऊपर वाली साइड पे 42 है और बिल्कुल नीचे ये देखिए, बहुत गौर से देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मुझे और अच्छे से बताएं। ये देखिए ये वाली जो है बोन, आप इस पे ऐसे चलते जाएं, इस बोन से, इस बोन से आप इस तरह से आएंगे तो अपने आप ही आप 41 पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए एक लाइन छूट गई है में, चेक करें आप अपने अपने उसमें, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं लिख के कि आपको मिली अपनी 41 जीबी। ये वाला पॉइंट ये बहुत पेनफुल पॉइंट होता है, सबका पॉइंट ये पेनफुल होगा क्योंकि इस धरती के इंसान के तो हर एक पे ही पेन होगी, इतनी विंड तो इसमें भरी रहती है। तो ये वाले पॉइंट को आप जब देखेंगे, इसके ये वाली देखिए नस, जब आप इस फिंगर से इस वाले फिंगर से आएंगे तो पहले आपको एक नस सी मिलेगी, उसको आपने क्रॉस कर लेना है तो आप 41 पे पहुंच पाएंगे। और इजी तरीका है कि आप इसको ऐसे पकड़ते जाएं और अपने आप ही ये बोन छूट जाएगी यूबी वाली और आप जीबी की लाइन में पहुंच जाएंगे और वहां 41 मिलेगा। आगे आते हैं, जब आप इस लाइन से ये टिबिया पे 36 का, यहाँ से आपने 36 को नाप लिया था यहाँ पे, अब ये वाली जो आंख होती है ना, नी की आंख, इससे आपने 4 फिंगर रखनी है ऐसे, और जिस जगह आपका ये हाथ आया इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं, ये वाली जो फिब्युलर बोन है ना, यहाँ से आपको, यहाँ से आपके पकड़ में आ जाती है ये एंकल के साथ साथ, इसको ऐसे चेक करते हुए जब आप इस पे आएंगे तो यहाँ पे एक बोन है, बड़ी सी बोन दिखती है यहाँ पे, देखते हैं ये, यहाँ से आपने 4 फिंगर रख के, ये वाला है हमारा इस फिब्युला बोन पे जीबी 34, ये भी पेनफुल पॉइंट है। देखिए दोबारा से करती हूँ, गॉल ब्लैडर की ये फिंगर है, स्मॉल फिंगर छोड़ के यूबी वाली, ये है हमारा गॉल ब्लैडर का एरिया। 45, 44, 43, यहाँ से चलते हुए 41, यहाँ पे 41 से निशा जी मार्क कर दीजिए स्केच पेन से। 38 रह गया ना बीच में, ये देखिए 44, 43 मार्क नहीं किया ना, 44, 43,
ये है 41, इसको बहुत इजी वे में ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद आएगा 38, वो कैसे आपने देखना है, देखिए जो हमारा लैटरल मेलुलस है, ये दिख रहा है आपको, इसके 5 फिंगर दूर जाना है हमें। मेलुलस का ये ऊपर वाला जो पार्ट है, उसके ऊपर आपने स्मॉल फिंगर रखनी है, कोई फिंगर रखी, एक फिंगर इस तरह से रखनी है, और ये वाला इसी टिबिया बोन, सॉरी फिब्यूला बोन पे ही ये आपको ये पॉइंट मिलेगा। 5 फिंगर दूर, यानी कि 4 कोण, यहाँ से मेलुलस से, लैटरल मेलुलस से आपने 5 उंगल नापनी है, और आपका 38 पॉइंट। ये देखिए बोन मेरी शायद आपको दिख रही है, ये टिबिया, ये फिब्यूला बोन है, ऊपर ये टिबिया होती है, उसको पकड़ लें, और यहाँ पे अपनी बोन के ऊपर ये मैग्नेट लगेगा, बट ये बोन के ऊपर आता है, ताकि आपको पीपीटी से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा मैसेज कर दें। ये देखिए इस तरह से आपको ऐसे चेक करेंगे तो आपको अपने स्किन के अंदर से भी बोन्स का पता चलता है कहाँ पे। और वो वाला 34 बताया मैंने कि ये भी आंख से नापना है, अपने स्टमक पे यहाँ से नापा था, यहाँ से मेजरमेंट की थी, पटेला के नीचे जो बोन आती है, लेकिन इसको थोड़ा ऊपर से मेजर करते हैं। ये देखिए, तो ये इस जगह पे इस बोन के ऊपर आता है, उभरी हुई जो हड्डी है वहां पे थोड़ा आगे का, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, यूबी 67, बिल्कुल कॉर्नर। टांगों के ऊपर, पैरों वाली मेरिडियन दिखानी बहुत मुश्किल है, मुझे कोई बच्चा मिला नहीं जिसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखा सकती। 67, ये बिल्कुल ये वाला जो माउंटेन सा है यहाँ वाला होता है, इसके बिल्कुल यहाँ फिंगर जैसे खत्म होती है और हमारा ये डिप्रेशन है, वहां पे हमारा 66, और ये माउंटेन क्रॉस करते ही ये वाला हमारा 65, ठीक है। 67, 66, 65, अब 60 पॉइंट, ये मेलुलस देखिए, लैटरल मेलुलस, जैसे केस 3 पीछे दिखाया था मैंने दूसरी साइड, उसी तरह मेलुलस के बिल्कुल पीछे ये हमारा 60 पॉइंट, ये 62 होता है यहाँ एक उंगल के नीचे दूरी पे, और ये इसके बिल्कुल सामने 60, इसके बिल्कुल पीछे 60 है। इसके बाद 40, आप सबको पता है कि ये वाली जो बोन है ऐसे पीछे जाती है, और हमारे ये यहाँ पे ना 3 लिगामेंट्स हैं जो खींच रहे हैं, मतलब जोड़ के रखते हैं हमारे पटेला को, रस्सियां सी जो होती हैं, और ये बिल्कुल उनके बीच में है, ये भारी सा यहाँ, ये भी पेनफुल पॉइंट होता है। जब भी नी के किसी को बहुत प्रॉब्लम हो तो हम इस तरह से वर्मा थेरेपी के थ्रू भी ऐसे करते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे वो पॉइंट है 44 भी, 54 भी बोलते हैं, 40 भी। एक बार फिर से देख लें, 67, 66, 65, 60 and 40, 52। आई होप सब कुछ समझ आए होंगे पॉइंट्स। मैंने जो कोशिश की, नहीं समझ आए तो भी पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में पीपीटी के थ्रू, आपको सबको अच्छे से इनको पॉइंट्स की लोकेशन बहुत अच्छे से ध्यान करना। कभी भी अगर बहुत ही हालत खराब में पेशेंट आता है तो उसके ओरिजिनल पे ही करें, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, बड़े अच्छे से उनका ट्रीट। ये जो अभी आज वाले यांग ऑर्गन के जो मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही काम करते हैं मैग्नेट, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ये मैंने बहुत बार आजमाए, इसलिए स्पेशल बता रही हूँ। मैं तो लोअर वार्मर का ट्रीटमेंट हमेशा ओरिजिनल पे ही करती हूँ, और घुटने पे भी जितने भी SP9 वगैरह कल आपको बताए थे, वो भी मैं कोशिश करती हूँ डायरेक्ट ही लगाऊं, ताकि आराम मिले, और बहुत जनों को आराम मिलता भी है। अगर ना, वैसे मैंने कोशिश की है, ना समझ आया तो प्लीज पीपीटी के थ्रू देखें। फिर भी ना समझ आया तो आज का क्वेरी सेशन होगा, आप उसमें भी अपनी क्वेरी रख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी आपको सॉल्व की जाएगी। कंटिन्यू टू लर्न। ओके, श्योर। इट वाज सो कैप्टिवेटिंग, बाप रे, लग रहा था देखते ही रहे। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट।
and see the location on the PPT so that it is, more clear. So we'll start with stomach meridian. Remember that this is a Jingwell point and it is a metal point and it is at the base of the nail towards the third toe. Okay, that is very important to remember. Next, this is water point, ST44, and it is in the middle of the first toe and the second toe. So it's just, you will find a depression over here. So this is ST44 and it is a water point. This is wood point, ST43. You have to not leave that channel, go upwards toward that channel, and there you will find, again, you will find a depression, and that is ST43. This is a fire point, ST41. It is, you will find a, a depression, but before that depression, you will find some protrusion of, the small tendons kind of a thing. So right in between that. So that is ST41, and this is a fire point. This is ST36. You can see the location. It's very easy to locate, and this is an earth point. Now let us see the location of gallbladder meridian. Now this is on the second last toe on the base of the nail, and this is GB44, and it is a metal point. Now again, this GB43, which is a water point, you can find it in the groove between the little toe and the second last toe. This is GB41. This is a wood point. Again, I would say there is a junction that you will be finding over here, just at the tip of the junction, that is GB41. This is a fire point, GB38. And this is GB34. This is an earth point. Now let us check the meridians of urinary bladder. 1 second. So this is urinary bladder 67. This is a metal point. Now this is on the pinky toe at, at the corner. This is UB66, and this is a water point. Now, when you will, you will find a mountain over there, and it is on the border. So just starting of the mountain, you will find 66, and after that mountain, you will find a depression, that is 65, and this is a wood point. This is a fire point. This is UB60. And this is UB40 behind the patella on the joint, on the crease, okay? And this is an earth point. I hope everything is clear. So now we will be showing you the location on Biol, and for that, Nisha ji. Okay. मेरे साथ आप सभी रिपीट करें सेम। मैं चाहती हूँ कि आज आप देखें, आप उसी तरह से करें, क्योंकि हम आगे बढ़ते हुए भूले ना, सब कुछ याद रहे हमें, ठीक है। यहाँ पे अपवर्ड थी हमारी जिन मेरिडियन, हैंड पे जाती थी, और यहाँ पे लेग पे जाती है वो जिन मेरिडियन। यहाँ हमारी जो यांग ऑर्गन की हैंड्स की थी, और यहाँ हमारी जो आज का टॉपिक है लेग्स की। चलिए हम लेग्स की उसी तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं 3। एक तो बिल्कुल नेल के साथ साथ, एक बिल्कुल वाद जॉइंट पे। ये मैं पहले भी करके रख सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोगों के बिना अकेली करूँ ये काम, इसलिए मैं आपके साथ ही चलती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने 5th जॉइंट पे एक लाइन कर ली, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लें,
और 2 लाइन साइड पे जो विजिबल हो सामने से देखने से। देखिए टूवर्ड्स इंडेक्स फिंगर हमारी स्टमक मेरिडियन आती है। स्टमक का जो 45 पॉइंट है ये नेल से ना थोड़ा सा ऊपर हल्का सा यहाँ कॉर्नर में आता है, बिल्कुल इस जगह, क्योंकि बहुत छोटा फेलेंजेस होते हैं ये, तो उनमें हम एडजस्ट कैसे करें, छोटे छोटे मैग्नेट ही लगते हैं। वैसे यहाँ पे 45 यहाँ आया, 44 बिल्कुल साथ ही, 43 बिल्कुल उसके साथ, और 41 हमारी एंकल जो ये बार जॉइंट का फर्स्ट जॉइंट है। 42 जो है वो बिल्कुल बीच में जो मैंने लाइन छोड़ दी वहां पे आता है। 45, 44, 43 बीच में लाइन छोड़ी, इसके बाद 41। अब आते हैं गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर का 44 नंबर यहाँ, 43 यहाँ पे, 42 छोड़ देना, 41, 44, 43, 41। उसके बाद 38 जो है सेंटर वाली लाइन लगानी पड़ेगी। ये देखिए सेंटर में जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे आपका 40 आता है। उसके बाद 39 बोन्स के लिए स्पेशल, ये 40 नींद के लिए स्पेशल, इसको टोन कर दो तो नींद बहुत अच्छे से आती है। 39 ये छोड़ दो। उसके बाद ठीक यहाँ पे हमारा 38 और स्टमक 40 बिल्कुल सामने सामने होते हैं। वो फ्लैम का होता है 40, कफ बने जमने ना पाए, तो ये 38। इसके बाद देखिए 34 की लोकेशन, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, जो पित्त जॉइंट की, पित्त जॉइंट की जो ये लाइन होती है, इनके बिल्कुल यहाँ, ये जॉइंट पे नहीं है, ये जॉइंट से यहाँ। मैंने आपको 40 का, एक सेकेंड, 45, 44, 43 और 36 बताना भूल गई शायद। ये है 36 हमारा। जैसे हमारा 34 आता है इस जगह, उसी तरह 36 भी जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर। देखिए आप लोगों ने मैसेज बॉक्स में डाला नहीं कि 36 की लोकेशन रहेगी। 45, 44, 43, 41 जॉइंट पे, और 36 इस पित्त जॉइंट से लिटिल बिट ऊपर। ये जो कुदरत ने हमें ये ऐसे दे रखी है ना, जो निशान से आते हैं पित्त जॉइंट पे, उसके उसके बिल्कुल ऊपर आता है। ऐसे 34 भी बिल्कुल ऐसे ही सामने आएगा। ये देखिए इस तरह, ये है हमारा जॉइंट। अब दोबारा से 44, 43, 42 छोड़ दें, 41 जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 40 नंबर हमारा जॉइंट पे है, ये 41 ऊपर है। 38 मिडल लाइन से थोड़ा सा ऊपर, और 34। अब आते हैं ये वाला यूबी का, टूवर्ड्स रिंग फिंगर, यूबी वाला है ये। हमेशा ध्यान रखना कहीं इस साइड आप यूबी कभी धोखे से ना समझ लें। वैसे तो सारे थेरेपिस्ट है, ये हो नहीं सकता। ये देखिए 67, 66, 65 जॉइंट पे 16। ये इतने छोटे छोटे मैग्नेट यहाँ पे लगते हैं, बिल्कुल इस जगह से हमें 67 स्टार्ट करना पड़ता है। 60 यहाँ पे है, 67, 66, 65, 60, और ये बिल्कुल जॉइंट पे है, पित्त जॉइंट 54। ये मुंह के जीभ पे अगर छाले हो जाएं या लिप्स पे अंदर की साइड छाले हो जाएं तो उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, खाली इसी कोई 54 को लगा दो, सिलेक्ट कर दो, छाले ठीक हो जाते हैं, सोर्स ठीक हो जाते हैं, जितने भी, कोई से भी कैसे भी हो, कितनी भी गर्मी से हो। अब देखिए दोबारा से एक बार बता दूं, 45, 44, 43, 41 एंड 36, 44, 43, 42,
2 छोड़ के 41, 38, 34, 67 यहाँ थोड़ा सा ऊपर, 66, 65, 66 फाइल्स के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर किसी को विंड परेशान कर रही हो, ज्यादा परेशानी थकावट रहती हो, तो भी बहुत अच्छा बिंदु है ये। 67 जो है आईज के लिए, आंखों में से पानी बह रहा हो, आंखें ड्राई हो गई हैं, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। 67, 66, 65, ये 65 और 16 एंकल पेन के लिए जबरदस्त पॉइंट। 54 हेयर फॉलिंग का भी है और सोर के लिए भी है। बॉडी की जितनी भी हीट निकल सकती है यहाँ से आराम से निकल जाती है। अब आते हैं हम, जैसे उस दिन बताया था जिंगल पॉइंट का, स्प्रिंग, स्ट्रीम, क्योंकि हमारी ये आगे वाली मेरिडियन सारी हो चुकी हैं कवर, तो ये भी हो गई, तो इनको रिलेट तो करना ही है। उसी तरह से ही इनके रिलेटेड ये प्रॉब्लम बताती हूँ कि जब भी किसी कोई पेशेंट आपके पास आता है, वात रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, आपको पता चल गया कि इसको ये चीजें हैं, तो आप उसको कैसे देखेंगे। इसमें आपको मैंने कल कहा था कि आपको प्रोटोकॉल भी देंगे और कोशिश करेंगे कि आप उन पॉइंट्स को, उन जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, यही 5 इशू पॉइंट, 60 कमांड पॉइंट की वैल्यू, क्योंकि आज लास्ट डे है और 60 कमांड पॉइंट की वैल्यू की ही चर्चा चल रही है शुरू से ही, तो उनको किस तरह से हम किसी भी पॉइंट में, किसी भी, एक सेकंड, उनको हम किस तरह से रिलेट करके, पेशेंट की बीमारी को कोरिलेट करके हम उनको कैसे ट्रीट करें। सबसे पहले आपने देखा था कि यहाँ पे जो भी फर्स्ट वात जॉइंट पे जो भी प्रॉब्लम आती है, अगर हाथ वाले ऊपर वाले प्रॉब्लम आई है, तो उनको कैसे ट्रीट करना है। जो आपको मैग्नेट आज बताए जाएंगे, प्रोटोकॉल बताया जाएगा, उसमें भी आप उनको भी यूज करना है। जो हमने जैसे सपोज करो H9, P9, ट्रिपल नॉर्मल 1, जो वात जॉइंट पे सारे आए उनको भी ट्रीटमेंट करना है, और जो प्रोटोकॉल दिया जाएगा उनको भी, ये दोनों ही चीजें लगानी है। इनके ऊपर क्या करना है, इनके ऊपर आप बहुत आराम से ना मेथी का एक दाना लगा सकते हो, सिंपल। किस तरह से लगाया, उस दिन तो मैंने आपको बताया था कि आप तीन इकट्ठे लगा लो, लेकिन बहुत इजी वे में आप ऐसे भी लगा सकते हो कि नहीं समझ आया, दूर दूर पॉइंट है, सारे पॉइंट एक जैसी लोकेशन में नहीं होते और बात के ही हैं वो, तो आप एक सिंगल दाना इस तरह से छोटी छोटी टेप लगा के उनको सिंगल तरीके से पहले लगा लें। 6 स्ट्रिप ऐसे छोटी छोटी लगा सकते हो। एक्यूरेट पॉइंट जरूरी है। टेप किस तरह से लगाते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन पॉइंट अगर एक्यूरेट नहीं है तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, अच्छे से उनको नहीं पता चलेगा। फिर आप कहोगे या पेशेंट कहेगा हमें तो आराम नहीं आया, आपका ट्रीटमेंट सही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। 60 कमांड पॉइंट जादू है अगर उनको सही तरीके से यूज किया जाए। जो आपको मैंने बात रिलेटेड प्रॉब्लम वाले पॉइंट बताए हैं, अब एक एक चीज द्वारा याद करके बतानी मुश्किल होती है थोड़ी सी, तो आप खुद ही देखना कि जिंगल पॉइंट कौन से हैं, उनके साथ जो प्रोटोकॉल भी बताऊंगी। उसके बाद हाथों की आपको बताए सारे जितने भी यहाँ एंकल तक हैं। उसके बाद आते हैं लेग्स पे। लेग्स की ज्यादातर प्रॉब्लम शोल्डर के अलावा, सर्वाइकल और शोल्डर के अलावा ज्यादातर प्रॉब्लम लंबर्स की होती है। या जेनाइटल एरिया में प्रॉब्लम होती है, या फाइब्रोइड किसी की हो जाती है, या एंकल में प्रॉब्लम है, या नी में प्रॉब्लम है। नी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो चुकी है। या फिर पेल्विक एरिया में आजकल बहुत पेन, गाउट जिनको हो जाए, उनको पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा पेन रहती है। हिप तक भी लोग कई कह देते हैं कि इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इनको बहुत ध्यान से सुने। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत अच्छा, SP4 जो है और PN3 वो डायबिटीज का ही है, उनके ऊपर भी लगाओ। तो जो अभी वो भी बताएं, वो उसके प्रोटोकॉल में ही आएगा ये सब कुछ। मैम आप धैर्य रखिए। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है और यहाँ वाले जो है जिंगवेल के सारे पॉइंट 6 के 6, और साथ में मैं आपको बताती हूँ, वैसे PPT में भी बताया जाएगा, पर मैं आपको उनकी लोकेशन बताना चाहती हूँ। जितने भी वात रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं उनके ये 6 के 6 तो पॉइंट आपने लगाने ही हैं। उसके अलावा गवर्निंग वेसल 20 वो यहाँ आएगा। देखिए ये वाला जो ज्वाइंट है इसके बिल्कुल ठीक ऊपर गवर्निंग वेसल 20 का सर्वाइकल पेन में बहुत ही वैल्यू है। और इसके साथ ही है गॉल ब्लैडर 20
और जीवी बर्निंग वेसल 16। इसकी भी मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन ऐसे बताऊंगी, नेल के बिल्कुल साथ, नेल के मिडल में। पता नहीं मेरे फोन पे आपको दिख रहा है या नहीं। हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं है। देखिए, हुआ क्लियर? हाँ, काफी कुछ। हाँ हाँ, सेंटर यस। में आप देखिए, यहाँ सेंटर, बिल्कुल सेंटर लेना है अपने नेल का। नेल के सेंटर से आप जब ऐसे आएंगे तो ये वाला जो जॉइंट है आपका, यहाँ पे बर्निंग वेसल 16 नंबर है, और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे ये वाला नेल जो है, ये जॉइंट है हमारा, इसके ठीक ऊपर इस साइड भी और इस साइड भी आपको गॉल ब्लैडर 20 है। ये बहुत पेनफुल पॉइंट होता है, सर्वाइकल के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और उसका नेक्स्ट पॉइंट है आपका 24, 21, 22। इसको टिप को थोड़ा सा छोड़, आज टिप का भी अभी बताऊंगी मैं। 21, 22, 23, 24, 24 ये यहाँ पे आता है। इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट के ऊपर भी आपने मैग्नेट लगाने हैं। यहाँ पे मैं मैग्नेट की बताऊंगी अभी बात आपको। और इसके बाद देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये है हमारा। इनको अगर आप लाइन ड्रॉ करके बनाओगे ना तो बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये देखिए, ये है हमारा GV14। ये इस टाइम इसका ट्रीटमेंट अभी बात वाला नहीं है। इसमें जो पॉइंट हमने देखना है वो ये है, UV11 छोड़ दो, UV12 एंड 13, ये बिल्कुल पास पास होते हैं, 12 एंड 13। एक बार फिर से देख लें। उसके साथ बात रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपके पास आती है, जो हमने जिंगल पॉइंट लगाने हैं वो लगाने के फौरन बाद साथ ही आप इसको लगाओ, सिर दर्द जितना भी हो निकल जाएगा। बर्निंग वेसल 16, गॉल ब्लैडर 20, UV 12 एंड 13। इसको बोलते हैं एक्सपेल विंड। आपने विंड एक्सपेल कर देनी है, बात को ही निकाल देना है, तो अपने आप ही वो पर्सन काफी हद तक रिलीफ फील करेगा। अब आते हैं स्प्रिंग पॉइंट पे। स्प्रिंग आपको बताया था टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम आती है उनमें। जितनी भी टेम्परेचर रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, फेब्राइल डिजीज लेके पर्सन आया है, तो उसका आपने एक्सपेल विंड, एक्सपेल हीट एंड एक्सपेल कोल्ड कर देना है। एक्सपेल हीट कैसे करना है उसकी मैं पॉइंट बताती हूँ। बर्निंग वेसल 14, जो मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये हमारा इस बात ज्वाइंट का वाला नहीं है, ये आपकी हीट निकाल देगा पर्सन की। जितना भी तेज बुखार हो, इस वाले पॉइंट को, सिंगल पॉइंट को भी अगर आप सिडेट कर देते हैं यहाँ, ये बहुत अच्छे से लोकेशन देखो। ये आप सबको पता है कि ये वाला जो ज्वाइंट है हमारा, यहाँ पे एक उभरी हुई सी बोन होती है छोटी सी, उसके बिल्कुल बीचों बीच इसमें भी थोड़ा सा देखिए लिटिल बिट डिप, तो इसकी नोक जितना ना, पेन की नोक जितना गड्ढा सा है यहाँ पे, वो है हमारा 14। आप कहोगे डिप्रेशन के तो पीछे पड़ गई, हर जगह गड्ढा। अब इसमें आपके पास एक, दो और तीन और पॉइंट है। LI4, LI4 देखें कहाँ है, पता नहीं आज क्या है। एक सेकंड, अब क्लियर है? यस। LI4 का, LI4 की लोकेशन, जो ये जॉइंट है इससे बिल्कुल जरा सा ऊपर, LI4 ये पेन के लिए सबसे बढ़िया ब्योल की है। ये ओरिजिनल तो आपको पता है यहाँ है। LI4, फिर LI11, वैसे तो उसमें भी है, पर इसमें भी ये जो आपने आप स्प्रिंग पॉइंट देखेंगे, 60 पॉइंट में भी है ये पॉइंट, लेकिन ऐसे भी। यस, LI4 पेन किलर। और UV62 आपको पैर की लोकेशन में 60 के साथ ही मैंने दिखाया था कि नीचे वाली साइड 62 है। और यहाँ पे अगर आप करते हो तो देखिए, ये वाले एरिया को छोड़ के थोड़ा सा अंदर आओगे यहाँ पे, तो आपको ये जॉइंट से यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ, ठीक है। ये पॉइंट है 62।
ये आपकी हीट को एक्सपेल कर देगा, हीट को निकाल देगा। इसके बाद आते हैं एक्सपेल कोल्ड। अब ये तो आपने देखना है कि पेशेंट किस तरह का आया, उसको गर्मी ज्यादा लग रही है या ठंड ज्यादा लग रही है, किस किस कंडीशन में है। तो एक्सपेल कोल्ड के लिए 2 पॉइंट है सिर्फ। LU7 ओरिजिनल पे भी लगा सकते हैं आप। मैंने आपको उस दिन बताया था कि ओरिजिनल पे इस तरह से आप आओगे तो यहाँ पे 8 है, उसके बिल्कुल पीछे घूम जाती है LU7। अगर ओरिजिनल पे लगाना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस पे लगा सकते हैं LU7। यहाँ पे थोड़ा सा आगे की तरफ नहीं होता ये वाला हमारा LU8 है, तो इससे थोड़ा सा पीछे 7 लाइन की ये LU7 लगाएंगे और LI4 लगाना है, वो जो मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुकी हूँ। ये कोल्ड को निकाल देता है। अब आते हैं जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम में। आपने हीट को निकालना है। जॉइंट रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें आपने ह्यूमिडिटी को निकालना है। तो उसके पॉइंट है स्टमक 45, GV 41, ये सारी आज आपको बता चुकी हूँ, GV 34, इसमें P5 और ट्रिपल वार्मर 6 भी लेना है, और साथ में SP12, UV 54 भी आज का बताया हुआ आपको, बस इसमें SP12 भी ऐड करना है। SP12 बहुत अच्छा पॉइंट है, इन सबके लोअर वार्मर की जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनमें काम करता है। अब आगे आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिवर प्रॉब्लम, उसमें क्या करना है आपने, ह्यूमिड एक्सपेल ड्राइनेस, ड्राइनेस भी निकालनी है, ह्यूमिड भी निकालनी है। उसमें आपको CV9, UV12, UV13, स्टमक 28, SP9, और ये तो सारे चारों करने सिडेट, और CV12 और UV20 जो है उनको टोन कर देना, ताकि स्प्लीन को एनर्जी दे सके हम। स्प्लीन को ताकत देनी है और हीट को हीट को निकाल देना। अब आते हैं हीसी पॉइंट पर। साथ साथ देखिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वो भी लगाने हैं। 6 कमांड पॉइंट के बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 6 कमांड पॉइंट अगर लगाओगे तो एक तरह से दिशा वाली, जैसे आपने आयुर्वेदा में सुना हुआ है कि दिशा और काल, ये दिशा देनी पड़ती है। 60 कमांड पॉइंट के साथ ये दिशा मिल जाएगी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को ठीक कर रहे हैं, तो उसकी ह्यूमिडिटी निकालनी है, और साथ में वहां पे स्प्लीन को टोन कर देना है। अब आते हैं हीसी पॉइंट पे। हीसी पॉइंट में एक्सपेल डैम्पनेस। डैम्पनेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ कि डैम्पनेस का क्या मतलब है। आपने खाना खाया, पानी नहीं भी पीते, चलो आजकल बहुत सही हो गए हैं लोग, समझदार हो चुके हैं, पानी नहीं भी पिया, खाना खाया, थोड़ी देर बाद फिर से कुछ चखने का दिल कर गया, लेकिन हमारा जो HCl है वो सिक्रेट होता है। जैसे हम टंग पे कुछ भी रखते हैं तो HCl सिक्रेशन शुरू हो जाती है। तो आपने खाना खाया, वो तो हजम हुआ नहीं, 2-3 घंटे बाद दूसरा खाना खा, क्योंकि हजम कैसे होगा जब जरा सा कुछ खाया, HCl सिक्रेशन हुई, स्टमक तो वैसे ही आपका गर्मी से भर गया, और वहां पे गर्मी इतनी है, या तो वैसे ही खाना जैसा खाया वैसा ही निकल जाता है, उसकी कोई वैल्यू आपको मिलती नहीं, तो वो वात में पहुंच जाता है, बंदा पतला हो जाता है। और जिनको नहीं पचता वो पड़ा रहता है, वो फिर ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी उसको पचाती है, ना लार्ज इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्प्शन करती है, कुछ भी नहीं उसका होता, तो वो पड़ा रहता है। उसके ऊपर से आपने और खा लिया, उस कचरे को, कचरा तो बन ही गया वो, उस खाने को अब बॉडी क्या करती है, बॉडी ने तो कुछ ना कुछ करना ही है, बॉडी ऐसे रख नहीं सकती, तो वो आपकी फैट में कन्वर्ट करके वो बॉडी के पार्ट्स में लगाती जाती है, जो जो जगह खाली मिलती है वहां पे हमारे फैट बढ़नी शुरू हो जाती है। कभी किसी रूप में फैट आती है, कभी किसी रूप में। वो डैम्पनेस कभी आपके चेहरे पे नजर आती है, कभी आपकी किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में, कईयों को फैट ऊपर की तरफ ज्यादा बढ़ता है, कईयों के नीचे की थाई एरिया में हो जाता है, किसी के पैरों में हो जाता है। तो डैम्पनेस सारी बीमारियों की जड़ है। ये लास्ट में ही है, हीसी पॉइंट का आपको मतलब पता ही है, जितने भी मोटे लोग हैं वो डैम्पनेस के शिकार हैं। डैम्पनेस निकालनी बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी से। इसके लिए भी SP9 आपको पता है लोकेशन, SP9 यहाँ पे, मैं बीच में शायद लोकेशन ही छोड़ दी, सच वो तो बता चुकी थी, ठीक है। SP9 CV8 की लोकेशन देखें, आपको बताऊं मैं, CV8 यहाँ होता है, स्टमक 28, स्टमक 28 को इस तरह से आप लोकेट करोगे, तो ये वाला जो पॉइंट हमारी ये लाइन जा रही है, ये लाइन के बिल्कुल यहाँ पे स्टमक 28 पॉइंट है। SP9 ये रहा, स्टमक 28, फिर आना है CV9 पे।
मेरे हाथ देखो कैसे मैसी हो गए। ये CV8 है, हमने CV9 पकड़ना है। ये हमारा CV9 पॉइंट। CV9 के फौरन बाद आपको UV22 में जाना है। तो ये वाली जो 4 फिंगर आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 4 फिंगर रखने के बाद इस साइड हमारा इस वाली बोन पे, ये देखिए मैं बहुत इजी लोकेशन बताना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले। ये 4 फिंगर हमने रखी, तो ये तो हमारा वर्निंग वेसल 4 है, ठीक है। इसके साथ ही आप आगे बढ़े, ये क्योंकि 4 के बिल्कुल साथ 23 है, इस लाइन से ऐसे आए, 4 के बिल्कुल साथ वाला 23 UV23 और उसके पीछे UV22। इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छे से देखनी है, SP9 की भी, स्टमक 28 और CV9। ये इतने जबरदस्त पॉइंट हैं इनके साथ। और मैंने 3 ऐड किए हैं, LU4, 5 एंड 7। LU4, 5 एंड 7 आपको पता ही है। 7 यहाँ पे आया, जो भी थोड़ी देर पहले बताया। LU5 यहाँ पे आता है। LU4 जो है ऑक्सीजन का पॉइंट है हमारा, जो ऑक्सीजन किसी को ना मिल रही हो, ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हो, तो ये LU4 उसको ऑक्सीजन देता है, ठीक है। LU4, 5 एंड 7 ये पॉइंट साथ में लास्ट वाली में डैम्पनेस में है। इन सबको अगर इन प्रोटोकॉल को भी, क्योंकि आप पजल ना हो, PPT में है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको वो पॉइंट आपके सामने हो, सब कुछ दिखे क्लियर। इन प्रोटोकॉल्स के साथ और इन सब चीजों के साथ अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो डेफिनेट पेशेंट ठीक होगा। और भी एक और तरीका है, ये सब कुछ तो है ही। इमीडिएट आपके पास कोई पेशेंट आया, आपको एकदम से समझ नहीं आती, तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताती हूँ। लेकिन इनके सबके साथ एक और ट्रीटमेंट करना है आप लोगों ने। इस तरह से मैग्नेट येलो ऊपर से दिखे, ये देखिए सारे वेब्स पे, अगर अपर वार्मर में कोई दिक्कत है तो अपर साइड पे सारे वेब्स पे, चारों वेब्स पे आपने ये सेडेशन कर देनी है। ऐसे एक एक सिंगल सिर्फ मैग्नेट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, चारों जगह पे ये भी कर दें। इसको टिकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप उनको बस ऐसे करके लगा दें। बाकी चल तो रहे ही है मैग्नेट, ये लगाने से उनको इमीडिएट आराम मिलेगा बहुत जल्द। ऐसे ही सेम पैर पे अगर कोई लोअर प्रॉब्लम लेके आता है, मेरे पास कोई आता है, मुझे एकदम से पेशेंट ज्यादा हो, नहीं टाइम दे पाती, तो मैं फौरन उनके वेब्स पे पहले कर देती हूँ। और एक और तरीका करती हूँ मैं, वो भी आपसे डिस्कस करूंगी। जब आप पैरों की भी वेब्स पे लगा देते हैं तो आधी पेन बंदे की ना उसी वैसे वो ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि हाँ जी हो गया ठीक, इससे फर्क पड़ेगा, इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। उसके बाद एक और जो पेशेंट के साथ मैं करती हूँ वो बताती हूँ। सपोज करो जैसे हमने ये इसको लेग्स देखा हुआ है, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फील होती हो, नी में उसको बहुत दिक्कत है, और मेरे पास पेशेंट 5-7 बैठे हैं, मैं उनको देखने के बाद ही उस लेडी को देख सकती हूँ। तो मैं उनके ना इस तरह से फिंगर्स के जिस जिस साइड में प्रॉब्लम फील करते हैं, वो बात जो है एक्यूट प्रॉब्लम है तो उनके मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ये रबड़ सारी ही। मैं तो आपको बताने के लिए सिर्फ एक पे लेके आई हूँ। 5 फिंगर पे वात ज्वाइंट पे आपने ये रबड़ चढ़ा देनी है, छोटी वाली, जितनी भी रबड़ चढ़ा सके। मैंने रखी तो थी 5 रबड़, ठीक है। इससे उनकी वात प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और अगर वो एल्बो जॉइंट का, नी जॉइंट की प्रॉब्लम लेके आया तो यहाँ पे, फिर उनके यहाँ पे जरूरत नहीं है करने की, यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ वात वाली साइड पे कर दो और नी वाली साइड पे कर दो, इससे भी उनको काफी आराम पड़ेगा। और अगर हिप्स की प्रॉब्लम, वहां पे लोअर 4-5 की प्रॉब्लम बता रहा है कि लंबर में मेरे प्रॉब्लम है, मेरी बैक पेन है, मेरे L4-5 परेशानी बता दी है। हाँ मैम, टेनिस एल्बो के लिए भी यही है। ये देखिए टेनिस एल्बो के लिए आपने इस तरह से, टेनिस एल्बो के लिए LI11 तो बाद में लगाएंगे, आप इसका ट्रीटमेंट करके देखना, ये बहुत जल्दी आराम आता है इससे। तो ये नहीं मैं कह रही ये टेम्परेरी आराम है, ये रियली एक्यूट प्रॉब्लम का तो रामबाण है।
इससे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और नसों की अगर देखिए, मैं उससे ना भटकना नहीं चाहती, जो हमारा है मेन, मेरा कहने का सिर्फ ये समझें कि इस वाली को इस तरह से आप सारी फिंगर्स पे भी डाल के देख सकते हैं। रखना कितनी देर है, क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए था। इसको जब आपने छोटी फिंगर सारी फिंगर्स पे डाल लिया ना, तो नीली होने से पहले आपको पता चल जाएगा उसका फिंगर का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि कलर जो हमारा ब्लड का फ्लो है वहां रुक गया थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ी देर रुका, तो जैसे ही आप हल्के जिस तरह से आपने सपोज करो, बहुत ध्यान से यही बात सुनने वाली है कि जितनी आराम से आपने लगाया ना, जब उनका फ्लो हल्का सा रुक गया है और फिंगर का कलर चेंज होना शुरू हुआ, तो ऐसे नहीं कि फटाफट निकाल दिया, ये नहीं करना काम, उससे ज्यादा सिर दर्द हो जाएगा उससे। बहुत ही आराम से एक एक लेयर आराम से उनके निकालना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ये जैसे निकालोगे उनकी फिंगर को इस तरह से आप कोशिश करना, एक रिंग आती है जो एक्वा प्रेशर की रिंग, उस रिंग को या तो घुमा दो उनके, या फिर ऐसे ऐसे ही उनको कहो कि मसाज कर ले, या आप मसाज करके दो उनकी, तो उनको इमीडिएट आराम पड़ेगा। घुटने में पेन, एंकल पेन है तो अभी आप आजमा के भी देख सकते हैं, अभी के अभी आपको पता चल जाएगा। जिनके सिर दर्द होता है ना, क्योंकि लास्ट डे है तो आज के ये टिप्स है मेरे, शायद आपके काम है, तो यहाँ पे जरूर रखें। अगर लेडीज सारी काम करते हुए थोड़ी देर ये बांध ही लिया करें तो वैसे ही सिर दर्द ठीक हो जाता है। काम करते हुए एनर्जी बनी रहेगी, थकावट नहीं होगी। ये भी कर सकते हैं और इस जगह पे ला के कर सकते हैं। ठीक है, मैंने और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैंने तो अपनी तरफ से मेरे ख्याल से सब कुछ बता दिया। इस तरह से आप करते हुए अपनी ट्रीटमेंट को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। कोई और क्वेश्चन अगर रह गया हुआ तो आज आपको टाइम दिया जाएगा, आप उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप पीपीटी के हेल्प से आप देखिए। कंटिन्यू शुक्ला जी। Okay. Okay. So let us continue with the plotting of the ball. All right. So this is the stomach meridian. As you all know, now you all are familiar how to make that line. So it should be visible from the front and make equal sections. This is the first joint and this is the second joint. So when you make equal section, so this is where you will find ST45, 44 on the next line, 43 on the next line, 41, leave one line, and 41, stomach 41 is there. On the second joint, you have stomach 36. Now, let us check the GB meridian. Now, this is on the center from the base of the nail. Again, you have to make equal sections from the first joint to the, from the nail base. On the nail base, you have GB44. The next line is GB43. The next line is GB41. Leave one line. There is no point on the first joint. Then again, leave this. Here you have GB38. And this is a second joint. Just above the second joint, you have GB34. Now, this is the location of UB on this ball. So again, from the corner of the nail base, you have GB67. Again, make equal sections, 1, 2, 3. So it is 67, 66, and 65. On the first joint, we have UB60. On the second joint, we have UB54. This is yesterday's class. It's a revision. We did liver, spleen, and kidney. So these were the points. Now together, I have just compiled it together so that, everything is all revised. Now we also have seen the Jingwell, Jingspring, Shoestream, Jing River, and Hisi. We all know that how the problems they travel. So once you know what kind of a problem the patient has come with, so you can choose that particular joint. So let us start with the Jingwell. Now, so Jingwell point on the yin side, we had seen liver 1, spleen 1, and K1. And on the yang side, stomach 45, GB 44, and UB 67. Now, whenever we have Vata related problems, Vata related problems like headache, epilepsy,
insomnia, loss of consciousness. Now, this is the first stage of disease. So you have to expel the wind. Expel the wind means it's like, expelling the vat. It's like expelling the wind. So these are the points: GB20, GB16, 24, UB13, and UB12. We have to sedate them all. So you can also see the location. I have, compiled it together so that it is easy, to locate the points. Now this is shoe spring points, and on the yin side we had seen liver 2, spleen 2, K2. On the yang side we have stomach 44, 43, and UB 66. Now this is the second stage of disease, and all the diseases which is temperature related. So say for example, if you have any eye problem, diabetes, or maybe irregular menstruation, so you have to treat on these points. Now, along with this, you have to expel the wind or expel the cold. So for expelling the heat, sorry, not wind, heat. So for expelling the heat, these points are amazing. It's really amazing. So it is GB14, UB62, LI4, LI11, and you have to sedate. But then if you do not know whether, you're confused to whether to tone or sedate, we would suggest keep it even method. Then you have to also expel the cold if you feel that the person is feeling cold or something like that. So then you can choose LU7 and LI4 is a very good point to expel cold. This is a third stage of disease. And in the third stage of disease, we know that it will be all joint related. So since we have covered the leg meridian, so definitely the lower body pain can be treated here. So say for example, if you have ankle pain, lumbar pain, hip pain, gout, knee pain, so you can treat on these fingers. And the earth point on the yin side is liver 3, spleen 3, and K3. On the yang side, we saw just now that ST43, GB41, and UB65. How can we treat? So for example, if we say this is a third stage, so definitely we will have to expel the humidity. So for that, we have stomach 45, GB41, GB34, P5, and TW6. Sedate I have written, but then if you are confused, if you don't know, you can do an even method. The point location on the Biol, Nishaji has already shown. You can, check the video again, recording, so it will be very easy. Now, this is the fourth stage of disease. So on the yin side, we saw liver 4, SP5, K7. And on the yang side, today we saw ST41, GB38, and UB60. Okay. Now, if it is a fourth stage problem, definitely it is all related to respiratory problems. So say, for example, if you have asthma, abdominal pain, or maybe excessive sweating, or sciatica, or heel pain, very good for heel pain. UB60 point is very good for heel pain. So here you have to expel the dryness. CV9, SP9, UB22, ST28, they are wonderful point to expel the dryness. And then you have to also tone the spleen. Why? Because if your spleen is healthy, you won't have these kind of problems. So this CV12 and UB20 is a marvelous point to tone the spleen. Now, this is the last stage, fifth stage of the disease. So we had seen on the yin side, we had liver 8, SP9, and K10. On the yang side, today we saw ST36, GB34, and UB40. Okay, so what kind of problems you can treat? And here you will have to expel the dampness, because it's like due to the dampness, there are lot many diseases that occur due to dampness, phlegm, and all that stuff. So you have to expel the dampness. So this again is marvelous point: CV9, SP9, 10, ST28, UB22, LU4, 5, and 7. Okay, so basically what Nishaji just explained, you can even use rubber bands, to stimulate those points. That is also very, very easy. She also said that we can apply points on the webs, supposing if you have upper area problem. So you can apply, you can sedate all the web points here, and supposing they have a problem on the lower side, then you can apply points on the webs on the feet. Okay. So any queries, we are going to take today queries. So anybody who wants to know something, so they can come up.
How do you do even method? Well, we can do even method with methi dana. We cannot do even method with Biol. Biol is always sedation and tonification. Even method is done by methi seeds. Any more questions? Hypothyroidism. Nisha ji. Yes. See, actually, so I would request that everyone should stay in the topic, because we are only doing 60 command points and 5 show points. So if it is related to this, because then we will be, getting diverted, and then everything will get all mixed up with you people. So to make it easy for you, so let us stick to the topic itself. Yes, Nisha. I think we had already given ट्रीटमेंट आप अभी पूछा, तो आपको आप पूछा है तो बताएंगे जरूर। ये फिंगर पे आपको पता है ट्रिपल वार्मर की फिंगर है ये। हाइपोथायराइड का मतलब है कि आपके थायराइड ने काम करना कम कर दिया। कम कर दिया तो फैट बढ़नी शुरू हो जाती है, बहुत ज्यादा फैट बढ़ती है, तो उसको मेडिसिन तो तब तक लेनी पड़ेगी, साथ साथ मेडिसिन लेते जाएं, क्योंकि हम जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया उसको मना नहीं करते कभी भी। बट आपका ट्रीटमेंट बहुत बहुत ही कमाल का है ये। यहाँ से आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, ट्रिपल वार्मर 2, इसको टोन करना है। यहाँ पे आप टोन करना ना भूलें, खाना खाने की तरह ही इसको याद रखें कि आपने ये करना ही करना है। यहाँ पे आपको ट्रिपल वार्मर 2 लगाना है, और ये वाली जगह पे सिडेशन, या फिर आप सिर्फ रेड कलर लगा लें, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ना उसमें भी, जो अभी किसी ने इवन मेथड भी पूछा और ये भी कि कैसे, तो 2 चीजें और बताऊंगी कि आप कलर की हेल्प से बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको भी बताया गया, हाइपोथायराइड का क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे भी रेड कलर गोल लगेगा, यहाँ पे भी रेड कलर का एक गोला लगेगा, और यहाँ पे भी एक पॉइंट सा बना दें गोल गोल सा, और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रिपल वार्मर 2 को टोन कर दें। बस इतना ही काफी होगा और आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने जितने भी अभी जिंगवेल पॉइंट देखे, उनमें आपको पता है कि किसी में मेटल एनर्जी आई है, किसी में वाटर एनर्जी आई है, किसी में फायर है, किसी में अर्थ है। तो जो कलर वहां पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे मेटल है, जिंगल पॉइंट हमारे मेटल आता है, यहाँ पे वुड आता है, तो वुड वाली एरिया में आपने अगर टोन करना है तो यहाँ पे आप उसको ग्रीन कलर से टोन कर सकते हैं। तो ग्रीन, अगर वुड वाले एरिया को आपको सिडेट करना है तो आप मेटल वाले ब्राउन कलर पे पहुंच सकते हैं। वो भी आपको पीपीटी में मैं आपको वैसे हल्का सा फटाफट बता देती हूँ कि वुड वाला एरिया में आपने टोन करना है, तो वुड वाले एरिया में टोन करना है तो ग्रीन, सिडेट करना है तो ब्राउन। ऐसे ही दूसरी साइड पे आ जाएं, ये वाला मेटल एरिया में अगर टोन करना है तो ब्राउन, और अगर सिडेट करना है तो रेड। यहाँ पे दोनों ही चीजें। वैसे तो आप इसको खुद से मेहनत करें, अगर आप मेहनत करके ग्रुप में डालें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको सब कुछ पता है। एक तरीका बता रही हूँ कि वुड जैसे हमने यहाँ पे नोटिस कर लिया, उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आता है, फायर। फायर में यहाँ पे रेड है, रेड टोन का कलर है, और पीछे क्या आता है, वाटर ब्लैक का कलर है। अब इसका सिलेट आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके बताना। उसी तरह आगे ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी का टोन करने का येलो है, तो सिलेट का आपने लिखना है। यहाँ पे फायर मेटल, वाटर, उसके बाद क्या आया, अर्थ, ह्यूमिडिटी। इसका टोन करने का जो भी वो ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है, यहाँ टोन करने के लिए येलो कलर। और क्योंकि यहाँ पे क्या है अभी बताया ना, टोन करने की। इसी तरह से आपने सारे के सारे हमें ना टोन और सिलेट के एक बार व्हाट्सएप जरूर करना, उससे पता चलेगा कि आप जुड़े हुए हैं। आपको जो भी हमने बताया वो आपको आ गया, कहीं ये तो नहीं है कि भूल गए। और दूसरी चीज, एक और काम करना आपने, जो लीवर 1 और स्प्लीन 1 है, जो मैंने आपको अभी हाथों पे तो बताया, नी का भी बताया। लीवर 1 और स्प्लीन 1 पे आप अंगूठे पे, बिग टो पे आपने ये लास्ट ज्वाइंट जो होता है उसका सेंटर में भी कर सकते हो, SP1 और लीवर 1 पे भी कर सकते हो, नेल के बिल्कुल आसपास ये रबड़। इतने कमाल की है, जेनाइटल प्रॉब्लम जितनी भी हैं सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। नी प्रॉब्लम जितनी है, लंबर पेन की प्रॉब्लम जितनी है, मतलब आपने सिर्फ अंगूठे पे ही 3 रबड़ कर दी ना, कफ, उसके कफ ज्वाइंट पे,
बीच वाले वार्ड जॉइंट पे और ऊपर SP1 और लिंगर 1 वाले पोर्शन में, तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टायर्डनेस खत्म हो जाएगी, थकावट खत्म हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए, क्या कह रहे थे? निशा जी, और भी क्वेश्चंस है। कोई कह रहे हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज के बारे में क्या बता रहे थे। उसके पहले किसी ने पूछा है कि LU7 और LI4 को सीडेट करना है या टोन करना है, सीडेट करना है, हीट टू एक्सपेल हीट। हाँ, सीडेट। एक और क्वेश्चन है डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बताइए। हाँ, कोलेस्ट्रॉल जो है वो SP4 सिंगल पॉइंट ही बता सकती हूँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आप इस फिंगर पे करते हैं, वो आयुर्वेदा वाली साइड में नहीं जाऊंगी, अभी हमारा टॉपिक कुछ और है। तो SP4 पे आप सीडेट कर दें। SP4 मैंने कल आपको बताया था, निकलते हुए वहां से रास्ते में पड़ा था SP4। SP5 तक पहुंचने से पहले SP3 के बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे एक बोन है। देखिए, मेरे लिए अब बताना बड़ा मुश्किल है, यहाँ ये टो से आप आगे बढ़ोगे तो वहां पे SP4 आता है, एक बोन सी दिखेगी, वहां उससे पहले गड्ढा आता है SP3 के थोड़ी देर बाद में। जो मैंने K2 बताया था, K2 के साथ भी बताया था कि थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे है। और दूसरा SP4 उसको आपने कोलेस्ट्रॉल के लिए सीडेट करना है। PN3 और SP3 इनको डायबिटीज के लिए टोन करना है। Okay. वैसे तो so आज somebody रिलेटेड की क्वेश्चन पूछे हैं, जो हमने टॉपिक 60 कमांड पॉइंट है, इनके ही जो आपको शुरू से ही क्लास आपकी स्टार्ट की है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ये तो आपको मैं आपको वो नहीं बनाना चाहती जो आप कर रहे हैं। आपको तो ट्रेंड एकदम थेरेपिस्ट ऐसा कि आप 1 मिनट में अपने आप ही जजमेंट कर सकें, आप प्रोटोकॉल बनाने सीख सकें। ये तो कोई चीज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ये फलाना, ये बुक्स में भरी पड़ी है। आप इनको गहराई से समझें कि आपने जाना क्या है, आपने सीखा क्या है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल क्यों बनता है, आप क्यों पे जाए ना, रूट कोज पे जाए। कोलेस्ट्रॉल तो एक बीमारी है, एक चीज है, पेन है। अब पेन का इलाज लोग शुरू कर देते हैं। पेन को तो अलार्म समझे ना। पेन आपको ये बता रही है कि आपके इस ऑर्गन में दिक्कत आ चुकी है, इस पॉइंट पे आपकी परेशानी है। आप उस पॉइंट को पकड़े, उस मेरिडियन के रास्ते को, जो मैंने फ्लो बताया है, 12 मेरिडियन है हमारे, फ्रंट बैक साइड लेफ्ट राइट। आप उस जिस जगह भी पेन आपको फील हो रही है ना, पहले तो उस लोकल पॉइंट को देखें कि वहां पे लोकल पॉइंट है क्या। लोकल पॉइंट के साथ ही आप देखें कि उसकी वजह क्या है। अगर लोकल पॉइंट का आपको पता चला कि ये है, तो फिर आप उसको रिलेट करें कि यहाँ पे क्या हो सकता है। इस दिक्कत वात की दिक्कत है या कौन सी स्टेज की दिक्कत है। अगर आगे आपको कोई इस तरह की परेशानी आती है ना, कोई ऐसा टॉपिक रह गया हो जिसमें आपको समझ ना आ पाया हो, तो आप रबड़ बैंड से एक बार तो 1 दिन के लिए तो टाइम ले लें, पेशेंट को रिलीफ देके भेज दें। सारे टिप्स को आप कर दें, रबड़ का कर दें, वेब्स का कर दें। फिर अगले दिन के लिए आपके पास टाइम होगा, आप उसको 12 घंटे 15 घंटे के बाद ही बनाएंगे। तब आप कॉल भी कर सकते हैं, बुक्स में से भी देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको वो थेरेपिस्ट बनाएं जो आपको मुझसे या किसी से भी पूछना ना पड़े, खुद से ही जानो, उस रूट कोज को पहचानो। फ्रूट का ट्रीटमेंट तो लोकल पॉइंट पे दे दो, हो जाएगा ठीक, उसी टाइम वो चला जाएगा, खुश हो जाएगा, अगले दिन वापस आएगा कि मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए, परमात्मा ने ना हमें जो ये थेरेपी दी है, ये गॉड गिफ्टेड है। ये ऐसी चीज है जो एलोपैथी 5-5 साल में पढ़ने के बाद लोग नहीं कर पाते। उनकी मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन से वो खुद भी परेशान है, और उनके पास सर्जरी जो है वो सबसे बड़ी ऑप्शन होता है। हमारे पास परमात्मा ने बहुत बड़ी हिम्मत दी है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन लोगों का विश्वास हमारे पास नहीं है। वो बाद में बनता है, जब आप मेहनत करते हैं उनके ऊपर, आप उनके लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं ना, तब वो मानते हैं कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए, उनकी सेवा। हमारे लिए ये नहीं है, हम डॉक्टर तो है नहीं, हम सेवा करने वाले हैं। हम जितनी सेवा कर सकते हैं उनकी, वो भाव रखें और पेशेंट के उस दर्द को पहचाने। जैसे आप अपने मन में ये भाव रखेंगे ना कि मैंने, हे प्रभु, इस पर्सन को जो आया मेरे पास, आपने भेजा है, इसको ठीक कर दो, तो जो आप लगाएंगे वही ठीक कर देगा, वही चीजें उसके लिए अमृत बन जाएंगी। आप गलत तो कुछ लगाने से रहे, आप सोच समझ के ही लगाएंगे, जो भी आपको लगेगा कि हाँ इसकी ये प्रॉब्लम है। बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार हूँ, रात के 10 से लेके सुबह के 7 बजे से 6 बजे से पहले, 6 बजे तक बिल्कुल नहीं। उसके बाद मैं, जब भी आप कहोगे, मैं जरूर आपकी बातों का जवाब दूंगी, और कोशिश करूंगी आप वो पर्सन बने जो मैं तो क्या, हर बंदा ही, जो हमारे संस्थान वाले हमें देखना चाहते हैं, जो हम रोशन कर सकें उस जगह का नाम। मैंने पहले दिन भी यही शब्द कहे थे
कि हमें रोशन करना है अपने संस्थान का और अपनी पैथी का नाम। तो मेरे साथ आज तो आप हाथ मिला के ये कहें कि हाँ हम करेंगे, क्योंकि मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। कोशिश करूंगी आपको जितना अच्छे से अच्छे, आप जो मेरे पास नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, जितनी भी होगी मैं आपको जरूर। वेरिकोज वेन के लिए स्प्लीन सिंक का होती है प्रॉब्लम, स्प्लीन सिंकिंग के प्रोटोकॉल लगाएं। SP3 6 GB1 गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग वेसल 20, UB 20 और 21 और CV 12, ये करने की कोशिश करें। ये सारा कुछ बहुत कुछ इजी है। आप SP1 और लीवर 1 को कर देंगे, स्प्लीन सिंकिंग उससे भी ठीक हो जाएगी। आप रूट पे पहुंचे प्लीज, मैं तो यही चाहूंगी। चलो मेरा वेरी गुड निशा जी। हाँ जी निशा जी, देयर इज मोर क्वेश्चंस। सो वन मधु जी, शी इज आस्किंग dampness points, whether it will expel the dampness of the whole body. Yes, it will definitely expel the dampness of the whole body. It is a wonderful protocol. Another question निशा जी आपके लिए है। बात निकल जाती है बॉडी की धीरे धीरे। डैम्पनेस तो आप नोटिस करें कि बॉडी, किसी के लिम्फ है बना हुआ, किसी के लिपोमा सुना होगा आपने, बहुत लोगों को, कभी किसी के एक्जिला में हो जाता है, कभी किसी, ये डैम्पनेस ही है। किसी की स्किन पे यहाँ कुछ आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो डैम्पनेस ही है। डैम्पनेस तो आम है, ह्यूमिड हीट और डैम्पनेस तो बहुत है लोगों को। तो ये प्रोटोकॉल आप बताओ, आपको पीपीटी के माध्यम से पता तो चल ही चुका है। यस, देयर आर सम मोर क्वेरीज। सो ज्योत्सना जी कह रही है मैम आपके ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए। आप जिस भी लिंक से आई हैं आप उनसे उस ग्रुप में हो, तो आप डेफिनेटली इस ग्रुप में हो ही। K3 वंदना जी, यस यू आर आल्सो इन द ग्रुप। ये उषा जी पूछ रही है। K6 में अभी बताती हूँ। K3 की लोकेशन देखिए, ये वाला जो हमारा ये एरिया जा रहा है, यहाँ पे ये जॉइंट है, यहाँ पे K6 है और K3 है, सॉरी K3 यहाँ पे है, K6 ठीक ना तो वो साइड पे है ना मिडल में है, यहाँ लेग्स पे। हाँ मैं लेग्स पे दिखा देती हूँ, कोशिश करती हूँ खुद से, क्योंकि आज लास्ट डे है, मैं राज तो करना नहीं देती, फायदा क्या होगा, अच्छे से आप लोगों को ना पता चला तो फिर मजा नहीं आएगा। देखिए जैसे K3 मैंने यहाँ पे बताया था ना कल आपको, तो ये वाला जो मीडियल मेलरस है हमारा, इसके एक फिंगर इस तरह से आपने एक अंगूठा रखे, ये मेलुलस का है, ये एक अंगूठा आप यहाँ रखेंगे तो ये वाला हमारा K6 है, ये है हमारा मेलुलस, ये K6। नीचे पीछे K3 है, यहाँ पे SP5 है, ये बिल्कुल साथ साथ ऐसे लाइन जाती है, ये देखिए, ठीक है। ये पायल है हमारी थोड़ा सा हंस लें। Okay, so somebody is asking that ma'am weight loss के लिए how can we use the 60 command points? Well, the dampness points are very good for weight loss. देखिए वेट का तो सारी दुनिया में तमाशा बना हुआ है। वेट लॉस समक 36 जो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। एक और भेद भी बता दूं कि 36 अगर आप लगाते हैं, हमेशा लगा के रखें, लेग पे है कोई दिक्कत है नहीं, जिस दिन निकाला 1 घंटे बाद नहाने धोने सारा काम निपटाने के बाद फिर से लगा लें, बुढ़ापा ही नहीं आएगा, फेस पे तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बहुत ही सुंदर चेहरा हो जाता है। 36 से फैट निकल जाती है। ये नहीं है कि फेस के लिए खाली है, वो फैट को नहीं टिकने देता, क्योंकि आपने जो खाया पिया वो पचेगा। डैम्पनेस में 36 देखिए सिलेक्ट करनी है, ज्यादा पॉइंट 28 सिलेक्ट करना है, लेकिन ये खूबसूरती के लिए और बुढ़ापा ना आने के लिए है। अगर आपकी पेट की प्रॉब्लम है, कोई पेट में पेन है, तो आप 36 को टोन नहीं कर सकते, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बड़े ध्यान से देखने की चीजें हैं। आप 36 पे ना सिर्फ मटर का दाना एक लगाना शुरू कर देना, तो इवन मेथड है, उससे आपको जो मिलना है वो मिल जाएगा और पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। हाँ जी। So all right, on this note, let us end the session. I mean, thank you so much, Ravinder sir, Nisha ji. So we will try and make another, do another class so that more things are clear to you. Over to you, Nisha ji, sir. थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों ने 4 ये सीरीज जो चली थी 60 कमांड पॉइंट की, आप लोगों ने इतने धैर्य से हम लोगों को सुना है। धैर्य क्या, आप तो म्यूट किया हुआ था, आपको ना भी अच्छा लगा होगा तो आप कुछ कह नहीं पाए होंगे, मुझे लगता है वैसे बहुत अच्छा लगा होगा। वो इसलिए कि आपकी इतने दिन से कोई क्वेरी नहीं आई, किसी ने हैंड रेज नहीं किया, तो और उससे पता चल रहा था कि अच्छे से आपको समझ आया है
और नहीं समझ आया तो मैं तो खुले मंच पे ऑफर कर रही हूँ कि आप जब भी चाहें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। किसी तरह की भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, जो मुझे आता होगा, जितनी मुझे जानकारी होगी वो उसका आंसर मैं जरूर करूंगी। तो चलिए आज फिर हम विदा लेते हैं एक दूसरे से। सभी लोग हमारी फैमिली हैं, अच्छे से कोशिश करेंगे, जुड़े रहेंगे। रविंद्रा सर जिन्होंने ये मंच दिया, मैं अगेन आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आप लोगों ने हमें आगे आके लोगों के साथ अपनी एनर्जी शेयर करने का मौका दिया। और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो जा चुके हैं, जो इस अभी छोड़ के, उन सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you very much, madam. Today is a Deepavali day for us because on Deepavali usually people will get bonus. So we got really bonus today in the form of so many extra points, explained in the simplest possible manner. Actually, the program was designed to understand the location of 5 shoe points. You have explained, in addition to that, the importance of 5 shoe points and how to make use of that while treating. Whether how to expel wind and how to expel fire, how to expel humidity, how to expel dryness, how to expel coldness by using these 5 shoe points. It was very nice. Like bonus, you said, wind can be expelled on the head by GV16 and GV20, on the whole body by UB12 and 13. Very nice. And we can expel heat by sedating GV14 from the whole body. Single point treatment for fever. And then we can expel cold by sedating LU7. Single point is enough. And you can expel dryness by LU5 because metal is dryness, and dryness comes because of lack of water element in dry. It is dry. If we increase the water, that is water point of metal is LU5. That will single point will act like that, and so many things. For example, you talked about thyroid. TW2 is the water point of thyroid. And thyroid comes because of defective water metabolism. So if you tone single point TW2 along with stomach 10 is the empirical point for thyroid. Empirical point for BP is stomach 9. Stomach 9 we have to sedate. In thyroid we have to improve the circulation, yang. That is why people use kidney yang or any. For example, GV20 single point to improve the yang in the body. Like that, your session was wonderful. Both of you, really, I tell you, very nice. I mean, we were able to, all the students were able to, understand, and I'm sure if they implement it, they'll find success and their quest to know will improve. And, as I said earlier, any disease will occur only due to imbalance in 5 elements, 5 shoe points. In addition to that, it is essential to know what is, there is a tranquilizer point, there is analgesic point, there is influential point, there is distal point, there is Z-cliff point, and loop connecting point. If you can, in the next class, if you can kindly teach, we'll coordinate and I'll tell you, how to proceed. If you can teach these points, location and their importance, then I'll give a protocol to treat any disease. I mean, it's a formula to prepare any disease. Any disease can be treated with these points only, and all of them are located from, tip of the finger to middle joint, that is what we call fifth joint, up to the earth point. In between Vath and fifth joint only, these loop connecting Z-clip and influential points are located. Very easy to remember. I mean, you have made it very easy actually. The location, so nice, captivating, enthralling, beautiful. On behalf of all the students, I once again express my heartfelt, gratitude and thanks to both of you, and will certainly continue this session so that it will benefit a lot of students.
And in the next session, probably, we'll let us teach, we'll work out. I'll tell you, madam, both of you that, and, what are the points to be learned compulsorily. So one can on their own prepare protocols based on a formula I'm going to reveal. Thank you very much. So we'll catch up again soon. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so And much. I wish all the best for all the participants. Thank you. Okay, thank you, sir.